Okay, let us start this topic now. So you can raise your hand if you are having any doubts. So topic for today is congestion control algorithms. So congestion control algorithm basically, before going into detail of congestion control algorithm, we must understand what is congestion. We all know when there is a huge amount of traffic on the network, then we say there is a state of jamming condition, or we call it a congestion state, because when we try to put data onto the network more than the allowed bandwidth, so we call it as a condition of congestion. So let us start. So what is congestion first? A state occurring in a network layer where the traffic is so heavy so that it slows the network response time. So when there is a huge amount of traffic on the network, the traffic is not able to travel in that case, because traffic is so heavy and it slows down your network response time, that your data may or may not reach your destination. So such condition is called a congestion condition. Now we have some effects of congestion. As the delay increases, the performance decreases. Congestion basically decreases our performance. More the congestion, lesser will be the performance. And if the delay increases, then the waiting time is over and we have to retransmit the same data again. In that case, we have to do retransmission again, which makes situation worse. So these are the two effects of congestion. As the congestion increases, the delay increases. The delay increases, the performance decreases. And if delay further increases, data does not reach, its time to live TTL is over, then you have to retransmit the same data again. And for retransmission, we will say this is the worst thing we can have. We have to retransmit the data again. Now, next is we have seen congestion. What are the effects of congestion? Now, congestion occurs when the number of packets being transmitted through the network approaches the network handling capacity of the network. जब कंजेशन तब होता है जब पैकेट इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि जो नेटवर्क की हैंडलिंग कैपेसिटी से ज्यादा होने की कोशिश करे, तो उस केस में हम कहते हैं कंजेशन होता है. कंजेशन कंट्रोल का बेसिक पर्पस है, इट एम्स टू कीप द नंबर ऑफ पैकेट बिलो द लेवल, जिससे परफॉर्मेंस जो है गिरे नहीं. तो कंजेशन कंट्रोल का बेसिक काम होता है. आज का हमारा टॉपिक कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम है, तो इसमें हम यही देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पैकेट्स को एक लेवल के बिलो कैसे रखना है ताकि परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज ना करे. तो वी हैव टू एल्गोरिथम्स फॉर इट. Congestion control algorithm, that is called leaky bucket algorithm and token bucket algorithm. Leaky bucket algorithm is covered by your book, but token bucket algorithm is not covered by your book, the book you are having, this content book. So I will be sharing this PPT plus this video after this lecture, so that you can have token bucket algorithm also. Okay. So we will start with the first algorithm, that is called leaky bucket algorithm. तो leaky bucket algorithm कुछ ऐसा algorithm है, because हमारा ट्रैफिक दो तरह का हो सकता है. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. पहला है नीचे वाला डेटा, that is called fixed rate data, जिसमें मेरे पास डेटा फिक्स आ रहा है, हमेशा 3 Mbps डेटा ही आ रहा है. और दूसरे तरह का डेटा मेरे पास होता है बर्स्टी डेटा. कभी डेटा ज्यादा है 12 Mbps और कभी सिर्फ 2 Mbps. तो दो तरह का ट्रैफिक मेरे पास हो सकता है इन नेटवर्क. वन इज कॉल्ड फिक्स्ड रेट डेटा, जिसमें हमेशा डेटा फिक्स आ रहा है, हमेशा ऑल द टाइम. एंड बर्स्टी ट्रैफिक इज कॉल्ड when the data is variable, like suppose कभी 12 Mbps आ रहा है, कभी 2 Mbps आ रहा है, कभी 10 Mbps आ रहा है. तो ऐसे नेचर को हम डेटा को क्या बोलते हैं? बर्स्टी डेटा. Now we see the diagram on the left, when there is a tap and there is a leaky bucket. And अब ध्यान दीजिए, बकेट से जब इस एल्गोरिथम का नाम लीकी बकेट एल्गोरिथम है. तो बेसिकली से एक ऐसी बकेट है जो लीक कर रही है, ओके, विच इज लीकिंग ऑल द टाइम. नाउ इफ यू सी, अब इसमें अगर आप देखा जाए कि बकेट का जो नीचे होल है जहां से वाटर लीक कर रहा है, वो बकेट का होल तो फिक्स रहेगा, होल का साइज तो फिक्स रहेगा. इसका मतलब है जो आउटपुट है, जो इस बफर की आउटपुट है, इस बकेट की आउटपुट है, वो हमेशा फिक्स रहेगी, क्योंकि बकेट का होल सेम साइज का रहने वाला है और सेम ही ट्रैफिक जो है, सेम ही पानी उसमें से लीकिंग होगी. बट इनपुट जो है, जो इनपुट है वो वेरिएबल हो सकती है. कभी ज्यादा डेटा आ सकता है, कभी कम डेटा आ सकता है. तो आई रिपीट व्हाट वी हैव सीन इन दिस डायग्राम. हमारे पास दो तरह का डेटा हो सकता है, फिक्स्ड रेट डेटा
That is called when you are getting same amount of data at each moment of time. But we have a bursty data also when sometime data is more, sometime data is less at the input. So on the left we have a leaky bucket, a bucket which is leaking. It has a hole at the bottom, and we all know the hole size is going to remain the same. बकेट के नीचे जो होल है उसका साइज सेम रहने वाला है, तो लीकिंग रेट हमेशा सेम होगा. इसलिए आप देखिए तो आउटपुट में लिखा हुआ है आउटपुट इज फिक्स्ड बिकॉज बकेट होल साइज इज गोइंग टू रिमेन सेम. तो लीकेज रेट हमेशा सेम रहने वाला है. और इनपुट जो है इस बकेट में जो पानी टैप से आ रहा है वो बर्स्टी हो सकती है, कभी कम कभी ज्यादा. अगर आप इस सिचुएशन को, इस टैप वाली सिचुएशन को, इस बकेट वाली सिचुएशन को कंपेयर करें तो ये टैप से जो डाटा आ रहा है ये मेरी इनपुट ट्रैफिक है, और जो बकेट से बाहर जा रहा है लीक होके वो मेरी आउटपुट ट्रैफिक है. और ये जो बकेट है ये बेसिकली मेरी बफर है, मेरी मेमोरी बफर जिसमें मेरा डेटा जो है वो स्टोर हो रहा है. ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? रेज योर हैंड्स इफ दिस डायग्राम इज क्लियर. Okay, good. Now let us move. तो लीकी बकेट एल्गोरिथम सेज व्हाट? तो डायग्राम में हमने देखा लीकी बकेट में इनपुट ट्रैफिक इज वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड बस ट्री. आउटपुट वेरिएबल इज फिक्स्ड बिकॉज द बकेट होल साइज इज गोइंग टू रिमेन सेम. तो इफ वी कंपेयर इट, तो दिस बकेट इज माय बफर, दिस इज माय इनपुट ट्रैफिक एंड दिस इज माय आउटपुट. तो ये लीकी बकेट एल्गोरिथम का कुछ फ्लो चार्ट है जो दिखता है कैसे चलता है. तो मेरे पास एक अराइवल ऑफ पैकेट्स है. तो यहां मुझे चेक करना है जब पैकेट अराइव हो रहे हैं तो फुल तो नहीं हो रहा है क्या डेटा. अगर फुल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है तो मैं डेटा को क्यू में डाल सकता हूं, और अगर फुल हो रहा है यस तो मुझे डिस्कार्ड करना पड़ेगा बिकॉज और पैकेट मैं नहीं ले सकता. तो आई रिपीट, दिस इज अराइवल, मेरे पास डेटा आ रहा है, पैकेट आ रहा है, तो मुझे चेक करना है क्या मेरी बकेट फुल तो नहीं है. अगर फुल है यस तो मुझे डिस्कार्ड कर देना है बिकॉज बकेट ऑलरेडी फुल है, मैं डेटा नहीं डाल सकता. और अगर नो तो मुझे डेटा क्यू में डाल सकता हूं. क्यू में डेटा डालने के बाद उसको प्रोसेसर जो है एक एक करके डिपार्चर करेगा. ओके, इज दिस डायग्राम क्लियर एवरीवन? रेज योर हैंड्स. Okay, fine. Now let us see further what leaky bucket. This is a very good example for leaky bucket. This is a very good example. Please understand this in a very good way. Look this side. Counter is of size 10,000. The bucket counter size is of size 10,000. Okay. यहाँ पे जो पैकेट मेरे पास बकेट का साइज है वो 10,000 है. अबे कुमार प्लीज लोड ऑन योर हैंड. ओके, काउंटर बकेट साइज इज 10,000 साइज. जो पहला पैकेट मेरे पास आ रहा है वो 3200 बाइट का है, और बकेट का साइज है 10,000. पैकेट छोटा है 3200 बाइट का. इसका मतलब है इस पैकेट को मैं बकेट में डाल सकता हूं क्योंकि बकेट का साइज है 10,000, काउंटर का साइज है 10,000 और पैकेट का साइज है 3200. पैकेट का साइज बकेट के साइज से छोटा है तो ये पैकेट बकेट में आ सकता है. तो 3200 जब मैं बकेट में डाल दूंगा तो 10,000 माइनस 3200 मेरे बकेट का साइज बचेगा 6800. ओके, क्योंकि 10,000 में 3200 में ऑलरेडी डाल चुका हूं तो बकेट का साइज बचेगा 6800. नया पैकेट आया 3400 का जो अगेन मेरे बकेट साइज से स्मॉलर है. अगेन ये पैकेट मेरे बकेट साइज से स्मॉलर है तो उसको भी मैं बकेट में डाल सकता हूं. तो जब इसको मैं बकेट में डाल दूंगा तो 6800 माइनस 3400 मेरे बकेट का साइज बचेगा 3400. अब एक नया पैकेट आया है अगेन 2800 बाइट का जो अगेन बकेट के साइज से छोटा है. तो लाइक दिस आई कैन पुट दिस पैकेट इनटू माय बकेट. तो 3400 मेरे बकेट का साइज था, उसमें 2800 डाल दिया तो 34 माइनस 2800 मेरे पास बचा 600. अब बकेट का साइज बचा है 600 और नया पैकेट जो नेक्स्ट आ रहा है ग्रीन कलर में 3000 बाइट का. अब पहली बार मेरे पैकेट का साइज बकेट के साइज से, बकेट में इतनी कैपेसिटी बची है 600 और पैकेट आ रहा है 3000 का, तो इसको मैं बकेट में नहीं डाल सकता. अब आप पढ़िए ऊपर क्या लिखा हुआ है. इसको हम कैनॉट बी सेंट, इसको हम नहीं भेज सकते, इसको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लॉक टिक. ओके, तो आई रिपीट, मेरे बकेट का साइज 10,000 था, पैकेट आया 3200 का. 3200 बाइट इज स्मॉलर देन 10,000 बाय बकेट साइज, तो आई कैन सेंड दिस पैकेट. तो 10,000 से 3200 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 6800. नया पैकेट आया 3400 का जो अगेन मेरे बकेट साइज से स्मॉलर है
तो 6800 माइनस 3400, काउंटर साइज बकेट साइज इज नाउ 3400. अब नया पैकेट मेरे पास आया 2800 बाइट, तो इट इज अगेन स्मॉलर देन द बकेट साइज. तो दिस मींस आई कैन सेंड दिस. तो 3400 minus 2800, I am left with 600. Now bucket size is left with only 600, but packet size next is 3000. तो 3000 वाले पैकेट को मैं 600 की बकेट साइज में नहीं डाल सकता, बिकॉज 3000 इज मोर देन 600. तो अब देखिए लिखा हुआ है कि इन तीन पैकेट को हम नहीं भेज सकते, क्योंकि पैकेट का साइज बड़ा है, बकेट का साइज अब कम बचा है, तो इनको हम वेट करें. प्लीज, इज दिस डायग्राम क्लियर? रेज हैंड्स. Okay, now let us see its flow chart. Now let us see its flow chart. आप देखिए ये फ्लो चार्ट जो आप देख रहे हैं. अगेन प्लीज लोड ऑन योर हैंड्स. अभय कुमार. नाउ दिस इज द फ्लो चार्ट जो अभी हमने पिछले डायग्राम में देखा, इसका फ्लो चार्ट है. चेक करिए. हम काउंटर सेट करेंगे सब पहले स्टेप में. काउंटर का साइज इज 10,000. क्लॉक टिक की वेट करेंगे, और क्लॉक टिक की वेट करने के बाद देखेंगे इज द साइज ऑफ द फ्रेम एट द फ्रंट लेस देन द काउंटर. अब एग्जांपल देखिए. तो इज द फ्रेम, दिस फ्रेम लेस देन द काउंटर साइज? यस, 3200 इज लेस देन 10,000. तो आई कैन सेंड इट. मैं 3200 को पैकेट को सेंड कर दूंगा, और उसके बाद करूंगा डिक्रीमेंट. यस, डिक्रीमेंट किया था हमने. 10,000 माइनस 3200 इज लेफ्ट विद 6800. तो हमने डिक्रीमेंट किया था, और डिक्रीमेंट करने के बाद वापस जाएंगे और वापस चेक करेंगे क्या नेक्स्ट पैकेट अगेन मेरे काउंटर साइज से कम है. अगर कम है तो मैं इसको भेज सकता हूं, और 68 में से 34 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 3400. तो ये चल रहा है भेजने के लिए. और जैसे यहां पे आपने देखा था इन दिस एग्जांपल हियर, द 3000 वाज ग्रेटर देन 600. अब पैकेट का साइज बड़ा है और काउंटर का साइज छोटा है. तो आप ये देखिए, जब पैकेट का साइज जो है वो बड़ा होगा, नो, तो मुझे वापस आके रीसेट करना है काउंटर. रीसेट करने से काउंटर की वैल्यू दोबारा 10,000 हो जाएगी, और पैकेट को मैं आगे से भेज पाऊंगा. आई रिपीट, काउंटर को मैंने 10,000 सेट किया, क्लॉक का वेट किया, और चेक किया कि जो फ्रेम फ्रंट पे है 3200, क्या वो काउंटर साइज से कम है? अगर कम है तो मैं उसको भेज सकता हूं, और भेजने के बाद 10,000 माइनस 3200 इट विल बी लेफ्ट विद 6800. तो भेजने के बाद काउंटर को डिक्रीमेंट करना है और चेक करते रहना है. और जब भी ऐसा हो कि लाइक your counter size is smaller than the packet size, तो आपको उस केस में क्या करना है? आपको वेट करना है ताकि काउंटर रीसेट हो सके. काउंटर रीसेट होगा तो 10,000 साइज दोबारा होगा, और दोबारा होने के बाद उसको मैं पैकेट को भेज पाऊंगा. Is this flowchart clear to everyone? Please raise your hands. ओके, तो ये जो डायग्राम हमने देखा अभी, लाइक दिस वन, सेम इज दिस फ्लो चार्ट. उसकी उसी के लिए ये फ्लो चार्ट. तो ये मेरा एल्गोरिथम था, दैट इज कॉल्ड अ लीकी बकेट एल्गोरिथम. ओके, let us go now. Let's move to this is leaky bucket algorithm. leaky bucket में algorithm में हमने अभी तक क्या क्या देखा? हमने देखा दो तरह के algorithm है congestion control के, leaky bucket and token bucket. And like I insist कि आप इसी PPT से इसको पढ़ें, because इसमें सारा covered है. इसमें token bucket भी covered है जो आपकी बुक में नहीं है. तो leaky bucket algorithm कहता है कि इनपुट वेरिएबल हो सकती है, बट आउटपुट हमेशा फिक्स रहेगी, क्योंकि बकेट का होल का साइज हमेशा सेम रहने वाला है. दैट इज, इसको लीकी बकेट इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस बकेट इज लीकी. दिस बकेट इज माय बफर, दिस इज माय आउटपुट ट्रैफिक व्हिच इज ऑलवेज फिक्स्ड, एंड इनपुट ट्रैफिक व्हिच इज ऑलवेज वेरिएबल और आल्सो कॉल्ड बस्टिंग. देन हमने ये डायग्राम देखा कि पैकेट आ रहा है, अगर पैकेट आने पे बफर फुल हो रही है तो हम डिस्कार्ड कर देंगे, नहीं तो हम क्यू में डालेंगे और आगे भेज देंगे, डिपार्चर कर देंगे. फिर हमने ये डायग्राम देखा, ओके, एंड we saw the flow chart for it. Now next is the token bucket algorithm. आप ध्यान से देखिए, अगर इस डायग्राम को आप देखेंगे तो एक सिनेरियो है बिफोर और दूसरा सिनेरियो है आफ्टर. तो यहां पे बकेट है मेरे पास एक रेड कलर का, जिसमें लिखा है कि 1 token is added to the bucket at every delta time.
हर क्लॉक में हम एक नया टोकन बकेट में ऐड करते रहेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास होस्ट कंप्यूटर जो है, अगेन आई रिपीट, दिस इज माय बिफोर सिनेरियो, दिस आफ्टर सिनेरियो। तो मेरे पास 4 पैकेट यहां पे बचे हैं मेरे पास जो मैंने भेजने हैं। ये पैकेट नेटवर्क पे तब जा सकते हैं जब बकेट में टोकन होंगे। तो पहला पैकेट, ये वाला जो फर्स्ट पैकेट है, ये नेटवर्क में तब जाएगा जब ये बकेट में से एक टोकन कंज्यूम कर लेगा। तो जितने भी पैकेट नेटवर्क पे जाना चाहते हैं, यानी ये पैकेट पहले नेटवर्क से बकेट से एक टोकन कंज्यूम करेगा, आगे जाएगा। फिर दूसरा पैकेट बकेट से एक टोकन कंज्यूम करेगा, आगे जाएगा। और तीसरा पैकेट अगेन बकेट से टोकन कंज्यूम करेगा और आगे जाएगा नेटवर्क के ऊपर। और अगर बकेट में टोकन खत्म हो गए हैं तो इस पैकेट को वेट करना पड़ेगा, ताकि नई क्लॉक पे नया जब बकेट टोकन ऐड होगा तभी ये पैकेट जो है बकेट से टोकन कंज्यूम करके आगे जा सकता है। तो देखिए यहां इसने थोड़ा सा गलत बनाया है, यहां 5 पैकेट होने चाहिए थे। तो आप देखिए 3 पैकेट 3 टोकन कंज्यूम करने के बाद नेटवर्क में चले गए हैं और 2 पैकेट वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी बकेट में जब नया टोकन आएगा तब ये इसको कंज्यूम करके नेटवर्क पे जाएंगे। अगर आप देखिए इसका एक डायग्राम भी है यहाँ पे, इफ यू सी लाइक दिस, अगेन मेरे पास पैकेट आ रहा है और अगर मेरी बफर फुल है तो मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा, नहीं तो क्यू में डाल दूंगा। और क्यू से वो नेटवर्क में तब जाएगा जब वो बकेट से एक टोकन कंज्यूम करेगा। ये बकेट में टोकन पड़े हुए हैं, अब देखिए लिखा हुआ है 1 टोकन रिमूव। जैसे ही इस पैकेट को जो क्यू में है वो नेटवर्क में जाना चाहता है, वो बकेट से पहले एक टोकन कंज्यूम करेगा। और लिखा हुआ है 1 टोकन रिमूव्ड एंड डिस्कार्डेड पर सेल ट्रांसमिटेड। जो भी एक सेल या पैकेट ट्रांसमिट होगा वो बकेट से एक टोकन कंज्यूम करेगा। और बकेट कभी खाली नहीं होगी, बिकॉज अगर कंजेशन बहुत ज्यादा है तो बकेट में टोकन कम हो सकते हैं। हर क्लॉक पे हम नया टोकन बकेट में ऐड कर रहे हैं। तो कोई भी पैकेट जो नेटवर्क पे जाना चाहता है वो टोकन से बकेट से एक टोकन कंज्यूम करेगा। तमन्ना, यू हैव एनी डाउट? Tamanna, you have any doubts? You have raised your hand. Okay, please raise your hand if this diagram is clear, if this token bucket is clear. Okay, let us see once again what we have done in token bucket. I told you this is not available in your book, so you have to go from this PPT. तो टोकन बकेट कहता है मेरे पास एक बकेट है, जैसे कि नाम ही इसका टोकन बकेट है, तो एक बकेट है जिसमें टोकन्स है। और यहाँ पे मेरे पास कुछ पैकेट है जो नेटवर्क पे जाना चाहते हैं। आई टोल्ड यू दिस इज माय बिफोर पार्ट एंड दिस इज माय आफ्टर पार्ट। तो कोई भी पैकेट जो नेटवर्क पे जाना चाहता है वो बकेट से एक टोकन लेगा और फिर आगे जाएगा। फिर दूसरा पैकेट अपना टोकन लेगा, वो आगे जाएगा। तो कोई भी पैकेट जो नेटवर्क पे जाना चाहता है वो बकेट से एक टोकन कंज्यूम करेगा और बकेट कभी खाली नहीं होगी, बिकॉज हर डेटा टाइम पे, हर क्लॉक पे हम नया टोकन बकेट में ऐड करेंगे। तो अगर यहाँ पे 5 पैकेट होते तो मान लो 3 पैकेट ने 3 टोकन कंज्यूम करिए, वो नेटवर्क में चले गए और 2 पैकेट वेट कर रहे हैं, बिकॉज अभी बकेट में भी टोकन नहीं है। जैसे बकेट में टोकन आएगा ये पैकेट वहां से टोकन लेगा और नेटवर्क पे चला जाएगा। तो इसका एक डायग्राम हमने ये भी देखा। When packet is arriving, we have to check is the buffer full. If yes, we have to discard it because इसको स्टोर नहीं कर सकते। नो पे क्यू में डालेंगे और क्यू से अगर उसको नेटवर्क पे जाना है तो बकेट से एक टोकन लेगा और हर क्लॉक टिक पे हम बकेट में नए टोकन जो है वो ऐड करते हैं। इससे हम कर कुछ नहीं रहे हैं, दोनों एल्गोरिथम से हम आउटपुट ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि कंजेशन ना हो। अब ये है लीकी बकेट एल्गोरिथम और टोकन बकेट एल्गोरिथम में डिफरेंस। दोनों, वो टोकन डिपेंडेंट है टोकन बकेट, वो टोकन इंडिपेंडेंट है। If the bucket is full, the tokens are discarded, but not the packet. If the bucket is full, the packet and data is discarded. Packet can only, this token bucket है, ये ध्यान से, पैकेट तभी ट्रांसमिट हो सकते हैं अगर बकेट में टोकन है, उसमें हम पैकेट को कंटिन्यूसली ट्रांसमिट कर सकते हैं। It allows large bursts to be sent faster rate after that constant rate. अगर इनपुट बस्टी भी है तो उसको लास्ट में कांस्टेंट रेट पे भेज सकते हैं और वो हमेशा कांस्टेंट रेट पे ही भेजता है। It saves tokens to send larger bursts. ये टोकन को सेव भी कर सकता है। मान लो इस टाइम पे ट्रैफिक नहीं है, अगले टाइम में लार्ज ट्रैफिक आती है तो वो टोकन को सेव भी कर सकता है जब बर्स्ट आएगी उसके लिए। बट इसमें टोकन सेव नहीं करते बिकॉज इसमें टोकन होते ही नहीं है, ये टोकन इंडिपेंडेंट। तो these are the differences between the leaky bucket algorithm and token bucket algorithm. After this lecture, I am going to share this PPT with you so that आप leaky bucket और token bucket को अच्छे से समझ पाए। Please raise your hands if the both algorithms and their difference is clear.
ओके, ओनली 30 रेज हैंड्स, बाकियों को क्लियर नहीं हुआ क्या? ओके 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 फाइन, थैंक यू थैंक यू। नाउ दिस वाज लीकी कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम्स। तो अगर हम एक बार सारा देख लें कि हमने क्या पढ़ा है आज, तो लेट अस सी ऑल कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम। हमने पढ़ा व्हाट इज कंजेशन, कंजेशन क्या होता है, जब नेटवर्क ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो नेटवर्क रिस्पांस टाइम स्लो हो जाता है। कंजेशन का, चाँद कुमारी प्लीज लोड ऑन योर हैंड। देन वी हैव कंजेशन के इफेक्ट्स क्या हैं? डिले बढ़ती है, डिले बढ़ने से परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है, अगर डिले ज्यादा बढ़ती है तो रिट्रांसमिशन करनी पड़ेगी क्योंकि पैकेट लॉस होंगे एंड जिससे सिचुएशन वर्स हो सकती है। देन कंजेशन होता है जब डेटा नेटवर्क की हैंडलिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है, और कंजेशन कंट्रोल का बेसिक एम है टू कीप द नंबर ऑफ पैकेट बिलो दैट परफॉर्मेंस लेवल, क्या कि परफॉर्मेंस खराब ना हो, पैकेट का लेवल उससे लोअर करने के लिए। तो दो एल्गोरिथम हमारे पास, लीकी बकेट एंड टोकन बकेट। लीकी बकेट में हमने ये डायग्राम देखा, ट्रैफिक दो तरह का हो सकता है, फिक्स्ड रेट जिसमें हमेशा ट्रैफिक सेम होगा, एंड बर्स्टी डेटा व्हेन द ट्रैफिक विल बी वेरिएबल, समटाइम डेटा विल बी हाई, समटाइम डेटा विल बी लो। एंड लीकी बकेट, a bucket is leaking as the name is telling, bucket has a hole at the bottom, तो होल का साइज हमेशा सेम रहने वाला है, इसलिए आउटपुट ट्रैफिक हमेशा फिक्स होगा, इनपुट ट्रैफिक जो वेरिएबल हो सकता है। ये बकेट जो है मेरी बफर है, ये जो टैप से पानी आ रहा है दिस इज माय इनपुट ट्रैफिक, एंड जो बकेट से लीक कर रहा है दैट इज माय आउटपुट ट्रैफिक, एंड इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। देन हमने ये एल्गोरिथम देखा, लीकी बकेट का, अराइवल आ रहा है, पैकेट आ रहा है, अगर फुल हो रहा है बफर तो स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो क्यू में डाल के आगे भेज। देन वी सॉ दिस एग्जांपल फॉर लीकी बकेट, द फ्लो चार्ट फॉर दिस लीकी बकेट। देन वी सॉ द टोकन बकेट, कि बकेट में टोकन ऐड होंगे, जो भी पैकेट नेटवर्क पे जाना चाहता है वो बकेट से टोकन कंज्यूम करेगा और नेटवर्क के ऊपर जाएगा। दिस इज बिफोर सिनेरियो, दिस आफ्टर सिनेरियो, एंड दिस इज द अगेन diagram we saw for your token bucket algorithm. If packet arrives and buffer is full, buffer full होगा, वो पैकेट हम नहीं ले सकते, डिस्कार्ड कर देंगे, नो पे क्यू में डाल देंगे, और क्यू से if a packet wants to go on to the network, it has to consume one token from the bucket. ये लिखा हुआ है, one token removed and discarded. एक टोकन लेंगे यहां से, वो डिस्कार्ड हो जाएगा, बकेट में टोकन कम होते जाएंगे, बट हर क्लॉक पे हम नए टोकन बकेट में ऐड करते जाएंगे। So basically with both these algorithms we are trying to control the output traffic. जितने टोकन होंगे बकेट में उतने ही पैकेट आगे जाएंगे, तो इससे हम आउटपुट ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, एंड दिस इज द डिफरेंस वी सॉ बिटवीन them. Now let us go to the next topic we have, that is routing algorithms and devices. So we have two type of devices. First we will see the devices, then we will see the routing algorithms. Again I will say you cover this topic from this PPT because it is fully covering the topic. So networking devices and internetworking devices. Networking devices का मतलब है एक ही नेटवर्क के अंदर जब हम डिवाइसेस को अटैच करते हैं तो ऐसे डिवाइसेस को हम कहते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। एक ही डिवाइसेस के अंदर, एक ही नेटवर्क के अंदर when we attach devices, तो we call it networking devices. बट एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से अटैच करना है तो वी कॉल इट इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस। इज द डिफरेंस क्लियर? रेज हैंड्स। नेटवर्किंग डिवाइसेस मींस कनेक्टिंग डिवाइसेस इन द सेम नेटवर्क, एंड interconnecting devices means when you want to connect one network to other network. Okay, let us see now. Let us move and see the second one. तो कनेक्टिंग डिवाइसेस दो तरह के हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस मैं बता चुका हूं कि when you connect devices in the same network, and internetworking devices when you connect one network to the other network. तो नेटवर्किंग डिवाइसेस मेरे पास दो हैं, रिपीटर्स और ब्रिजेस, अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एंड इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस मेरे पास दो हैं, राउटर्स और गेटवेज। ओके, तो वी हैव नेटवर्किंग डिवाइसेस एज रिपीटर्स एंड ब्रिजेस, एंड इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस एज राउटर्स एंड गेटवेज। दो तरह के होते हैं दोनों। अगर ध्यान से देखें तो इसका ओएसआई मॉडल से डायरेक्ट रिलेशन है। तो रिपीटर जो है वो फिजिकल लेयर पे काम करता है, ब्रिज जो है डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, और राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, और गेटवे जो है वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। ओके, तो दिस इज कि कौन सा डिवाइस कौन सी लेयर पे काम करता है, पर इसमें एक चीज समझनी बहुत जरूरी है।
Suppose I say, as I have said, router works on the network layer, third layer, network layer. तो इसका मतलब है वो तीनों लेयर पे काम करता है, वो डाटा लिंक और फिजिकल पे भी काम करता है. अगर मैं गेटवे की बात कर रहा हूं तो गेटवे वर्क्स ऑन द एप्लीकेशन लेयर, सेवेंथ लेयर. दैट मींस इट वर्क्स ऑन ऑल बिलो लेयर्स. ब्रिज की बात कर रहे हैं, वो डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, तो इसका मतलब वो फिजिकल लेयर पे करता ही करता है. इज दिस क्लियर? प्लीज रेज योर हैंड्स. Okay, fine. Let us go to next diagram now. Now, repeater works on the physical layer. ये हम पहले ही बात कर चुके हैं. Repeater एक डिवाइस है जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में यूज होता है. अब हमने एक पैरामीटर पढ़ा था, एक बैड पैरामीटर कॉल्ड अटेन्युएशन. अगर आपको याद होगा, क्लास में भी वी हैव डिस्कस्ड इट. अटेन्युएशन इज बेसिकली लॉस ऑफ एनर्जी. जब आप डाटा भेजते हैं, सिग्नल भेजते हैं, थोड़े डिस्टेंस बाद वो वीक हो जाता है. वीक क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर. तो सिग्नल डाई ना हो, इसके लिए हम डिवाइस यूज करते हैं रिपीटर. तो रिपीटर इज नॉट एन एम्पलीफायर. आई हैव टोल्ड यू दिस अर्लियर आल्सो. बिकॉज रिपीटर इज अ रीजनरेटर. इट जनरेट्स अ फ्रेश सिग्नल. बट व्हाई कैनॉट बी एम्पलीफायर? बिकॉज एम्पलीफायर एम्पलीफाइज योर नॉइस आल्सो. तो इसलिए हम रिपीटर को कभी भी एम्पलीफायर नहीं बोलते, बिकॉज रिपीटर ओनली एम्पलीफाइज योर सिग्नल. बट your amplifier is basically increasing both signal and noise. तो यहां पे हम कभी भी रिपीटर को एम्पलीफायर नहीं बोलेंगे. ओके, तो ये रिपीटर है, दो नेटवर्क, एक ही नेटवर्क के अंदर लगा हुआ है. अगर आपको याद हो, इथरनेट के अंदर भी 10base5 में हमने रिपीटर यूज किया था. तो ये सिग्नल यहां से लेगा और फ्रेश सिग्नल आगे दे देगा. तो सिग्नल की इंटेंसिटी बढ़ाएगा ताकि अटेन्युएशन का इफेक्ट जो है वो सिग्नल पे ना हो और सिग्नल डाई ना हो. तो नेक्स्ट, ओके, दिस इज अ रिपीटर अगेन. ओके, दिस इज अ repeater we have seen. Now we have a bridge, the second device. Bridge works on the second layer of OSI model called a data link layer. We all know second layer is data link layer. Bridge works on the data link layer. तो डाटा लिंक लेयर पे काम करेगा, तो इसको हम ये ऐसे बोलेंगे कि ये डाटा बस दोनों लेयर पे काम करते हैं. ओके, तो ब्रिज का काम क्या है? बेसिकली ब्रिज का काम है सब नेटवर्क्स को कनेक्ट करना. ओके, ब्रिज का काम है सब नेटवर्क्स को कनेक्ट करना. तो दैट मीन्स इफ यू सी दिस डायग्राम, वी हैव सब नेटवर्क. तो ब्रिज इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग सब नेटवर्क्स. Like suppose we have a subnetwork of CSC, subnetwork of ESC, ECE. तो हम उनको जोड़ना चाहते हैं, तो we use a device called bridge. सब नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रिज. तो आप देखिए, एक सब नेटवर्क में हमारे पास डिवाइसेस हैं, ठीक है, ABCD, और दूसरे में हमारे पास EFGH. तो इफ अ डिवाइस सेंड्स अ सिग्नल फ्रॉम A to B, तो उसको ब्रिज क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज A and B are within the same सब नेटवर्क. But suppose A want to send data to G, तो in that case it needs to cross the bridge, because A ब्रिज के एक साइड में है और G ब्रिज के दूसरी साइड में. ब्रिज का एक ये भी काम है, बिकॉज हम सब नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका काम ये भी है, लाइक वी आर सिंप्लीफाइंग द ट्रैफिक. लाइक व्हाई वी आर यूजिंग ब्रिजेस इन द सिटी? वी आर यूजिंग टू डाइवर्ट द ट्रैफिक so that we can manage traffic, and we are basically connecting various sub areas of the city using the bridges. So here we are connecting various sub network using bridges. So basic purpose of bridges to connect your now we have types of bridges also. A simple bridge, like see this, the function of the bridge. If the computers want to send data from A to D, it is within the same network, sub network, so it does not need to cross the bridge. But suppose A want to send data to G, so in that case it will be crossing bridge. क्योंकि bridge decide करेगा कि data कौन से path पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 या 4 सब नेटवर्क हो सकते हैं, तो कौन से सब नेटवर्क में G है, ये कौन डिसाइड करेगा? bridge. This is a function of the bridge. We have types of bridges: simple bridge, multi-port bridge. If we are connecting two sub networks only, we call it a simple bridge. If we want to connect more than 2 sub networks, we call it multi-port bridge. Multi-port bridge. We are connecting more than 2 sub networks. LAN 1, LAN 2, LAN 3.
Now third device we have is the router and it is an internetworking device. Internetworking. अभी तक जो हमने देखे repeater and bridge, those were networking devices, connecting devices within the same network. Now we are going to connect one network to the other network. So here we are going to use a router device. It works on the third layer called network layer. So if we say it works on network layer, that means it works on all for 3 layers. Okay. Now if you see, we are connecting various networks using a router. Router का काम ये भी होता है, it uses your OSPF protocol, open shortest path first, to find the shortest path from any computer in a network to any other computer in the network. तो राउटर से आप डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकते हैं, बट राउटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये सारे नेटवर्क सेम हेटेरोजीनियस होने चाहिए, सेम टेक्नोलॉजी के होने चाहिए. इफ यू सी router, the router we use for connecting different networks but of the same technology. But if you say another device, gateway, I told you it works on the application layer, your 7th layer. That means it works on all layers. And if you see gateway, what is the difference between the router and the gateway? The router we will use when we are connecting same technologies, but gateway we will use when we are connecting different technologies. Like SNA, a simple network architecture is connecting to a network architecture. So both are different technologies. So here we will not use router, here we will use gateway, because gateway is also called as a protocol converter. क्योंकि जब SNA का डाटा नेटवर्क में आएगा तो उसको समझ ही नहीं आएगा, ये नेटवर्क का डाटा SNA में आएगा उसको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, इनका आर्किटेक्चर डिफरेंट है, इनके प्रोटोकॉल डिफरेंट है. तो गेटवे का काम ये है कि नेटवर्क से डाटा लेना और SNA की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसको देना, और SNA से डाटा लेना और गेट में उसको कन्वर्ट करेगा नेटवर्क की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में. तो हेटेरोजीनियस केस में हम यूज करेंगे हमारा गेटवे, बिकॉज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर. तो जो भी डाटा या इनकोडिंग मेथड नेटवर्क यूज करता है वो उससे डाटा लेगा एंड SNA की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उधर देगा. तो प्रोटोकॉल कन्वर्जन का काम भी करती है हमारी गेटवे. तो ये डिफरेंस है राउटर एंड गेटवे में. राउटर इज यूज्ड टू कनेक्ट सिमिलर टेक्नोलॉजीज एंड गेटवे इज यूज्ड टू कनेक्ट different technologies, because in different technologies are having different encoding methods and different protocols, different architectures. So if we want to share data in a heterogeneous environment, there we have to use gateway, because gateway is also acting like a protocol converter, because it will take data from SNA network and convert it to network's understandable form. For this example in the book we are seeing on the screen, and it will take data from the network and convert it to SNA's understandable form and deliver to it. Okay, so are all the devices clear? Please raise your hands if all the devices are clear. Okay, let us move now to the next. Now we have, okay, there's a again a component called browser. So browser is a name derived from the term called bridge and router. तो ये ब्रिज की तरह भी काम करेगा और राउटर की तरह भी काम करेगा. अगर आप राउटर यूज करते हैं तो ये ब्रिज की तरह भी काम करता है और राउटर की तरह भी काम करता है. Okay, now we are having another topic called routing algorithms. हमारे पास दो routing algorithms हैं. The first we will see routing algorithm होता क्या है. A routing algorithm is that part of network responsible for deciding which output line and incoming packet should be transmitted on. कि डाटा कौन से रूट से जाएगा, कौन से पाथ से जाएगा, या कौन से आउटपुट लाइन पे मुझे डाटा भेजना है जो मेरे इनकमिंग मेरे पास आ रहा है. तो राउटिंग एल्गोरिथम एक डिसीजन लेता है, ये डिसाइड करता है कि विच रूट विल बी फॉलोड. एंड हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रूटिंग है. इफ यू सी इन द बॉटम, राउटिंग एल्गोरिथम्स एंड टेक्निक्स. We have adaptive routing, we have non-adaptive routing, we have distance vector routing, we have link state routing, and we have shortest path routing. So these are the 5 type of routing we have. If we see, try to define these routings. तो adaptive routing का मतलब है जो अडेप्ट करेगी. मान लीजिए आपके नेटवर्क में कोई डाटा जा रहा है और रूट डिफाइंड है कि इस रूट से डाटा जाएगा. अडेप्टिव रूटिंग का मतलब है कि अडेप्ट कर जाएगा. मान लो उस पाथ से फेलियर हो जाता है, उस पाथ से डाटा नहीं जा सकता, तो इट विल चूज एन ऑल्टरनेट पाथ. वो किसी और पाथ से उस डाटा को सेंड करेगा. तो
यानी कहने का मतलब है अगर फॉल्ट हुआ तो वो उसको अडेप्ट कर जाएगा. अडेप्ट कैसे कर जाएगा? बाय फाइंडिंग सम अदर रूट. तो सच रूटिंग इज कॉल्ड अडेप्टिव रूटिंग. And non-adaptive routing is called basically when where it cannot adapt and you have to send the data from the same route. Distance vector और link state के बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे. And another type of routing we have is shortest path routing. Of course, when we are routing data, we are sending data, we are finding the route for the data. We have to find the shortest path for it from where the data will go. So adaptive routing we saw where if the path is damaged or path is not working, it will adapt and find the alternate path. कोई alternate path, कोई दूसरा path देख लेगा. Non-adaptive, we have to send data from the same path. Shortest path routing, where the data will go from the shortest path. And two are left: distance vector and link state. Now routing algorithm की properties क्या हैं? Correct होना चाहिए, destination तक पहुंचने चाहिए, simple होना चाहिए, robust होना चाहिए. अगर कोई path malfunctioning करे, कोई path ना चले, तो वो उसको हैंडल कर पाए. स्टेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और ऑप्टिमल होना चाहिए. ऑप्टिमल मतलब है लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए, लॉस रेशियो कम होना चाहिए. तो ये एक एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज होती है. देन वी हैव, आई टोल्ड यू, दिस अडैप्टिव एल्गोरिथम. तो इसमें हमें अडैप्ट कर जाता है हमारे पास. सी अडैप्टिव रूटिंग के बारे में पढ़िए क्या लिखा है. इट चेंज देयर रूटिंग डिसीजन टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन द टोपोलॉजी ऑफ ट्रैफिक. तो अगर आपकी टोपोलॉजी में कोई चेंज आता है या रूटिंग में कोई चेंज आता है तो वो एडजेसेंट पाथ, कोई ऑल्टरनेट पाथ फाइंड कर सकता है. बट नॉन एडिटिव में ऐसा नहीं होता, वो अडेप्ट नहीं कर सकता उसको. इट डू नॉट बेस देयर रूटिंग डिसीजन ऑन द मेजरमेंट ऑफ द एस्टिमेट ऑफ द करंट ट्रैफिक. अगर अडेप्टिव में एक रूट पे ट्रैफिक ज्यादा है तो वो दूसरे रूट से डाटा भेज सकता है, अडेप्ट कर सकता है. यदि टोपोलॉजी भी चेंज होती है, ट्रैफिक चेंज होती है, तो उसको अडेप्ट कर सकेगा. बट नॉन एडिटिव उसको अडेप्ट नहीं कर सकता. और अभी हमने बात करी अडेप्टिव की, नॉन अडेप्टिव की और शॉर्टेस्ट रूट पाथ रूटिंग. तो वी आर लेफ्ट विद द टू पार्ट, डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग एंड लिंक स्टेट रूटिंग. अब ध्यान से सुनिए इसको. डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग का क्या मतलब है? डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग क्या कहता है? इसकी तीन ही प्रॉपर्टी है. और लिंक स्टेट रूटिंग वी हैव द अनदर वन. तो इन दोनों की जो तीन प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों एक दूसरे से एग्जैक्टली रिवर्स हैं. लाइक डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग कहता है इट हैज द नॉलेज ऑफ द होल नेटवर्क. इसको पूरे नेटवर्क की नॉलेज होती है कि कौन सा डिवाइस कहां है. फर्स्ट प्रॉपर्टी कि इसको पूरे नेटवर्क की नॉलेज होती है कि कौन सा डिवाइस कहां पे है. एंड राउटिंग इंफॉर्मेशन, वो जो नॉलेज है उसकी, वो शेयर करेगा सिर्फ अपने नेबर्स के साथ. और राउटिंग इंफॉर्मेशन अपडेटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. यानी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, सपोज आई डिफाइन 5 नैनोसेकंड, तो 5 नैनोसेकंड बाद रूटिंग इंफॉर्मेशन अपडेट होगी कि कोई डिवाइस रिमूव तो नहीं हुआ नेटवर्क से, कोई नया डिवाइस ऐड तो नहीं हुआ. तो आई रिपीट, डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग सेज कि इसको पूरे नेटवर्क की नॉलेज होती है, बट डेटा सिर्फ, रूटिंग नॉलेज डेटा सिर्फ अपने नेबर्स को है. एंड थर्ड इज रूटिंग इंफॉर्मेशन अपडेटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. लाइक इफ वी डिफाइन अ टाइम इंटरवल ऑफ सपोज 5 नैनोसेकंड, तो आफ्टर एवरी 5 नैनोसेकंड रूटिंग इंफॉर्मेशन विल बी अपडेटेड कि कोई नई डिवाइस ऐड तो नहीं हुआ, कोई पुराना डिवाइस रिमूव तो नहीं हुआ. नाउ इफ वी से द जस्ट रिवर्स ऑफ इट, लिंक स्टेट, इसमें हमारे पास नेटवर्क, डिस्टेंस वेक्टर में हमारे पास पूरे नेटवर्क की नॉलेज थी, पर डेटा सिर्फ अपने नेबर्स को था. इसमें उल्टा है, नॉलेज नेबर्स की है पर डेटा पूरे नेटवर्क की. जस्ट द रिवर्स ऑफ इट. आई रिपीट, वी हैव द नॉलेज ऑफ द होल नेटवर्क बट वी विल शेयर इट ओनली विद द नेबर्स. उसमें उल्टा है, knowledge about the neighbors only but will share that information with all the network. और तीसरा डिफरेंस जो है वो था राउटिंग इंफॉर्मेशन अपडेटेड एट, उसमें एक फिक्स टाइम के बाद वो रूटिंग इंफॉर्मेशन अपडेट करेगा ही करेगा. पर लिंक स्टेट में वो नहीं करेगा. वो तभी इंफॉर्मेशन अपडेट करेगा जब कोई चेंज होगी. चेंज होने का मतलब है कोई नया कंप्यूटर ऐड होगा या कोई नया पुराना कंप्यूटर रिमूव होगा. प्लीज रेज हैंड. इज द डिफरेंस क्लियर बिटवीन द टू? Okay, let us see once again what we discussed. I told you in distance vector routing, it has knowledge about the whole network but will give that knowledge only to the neighbors. उसमें उल्टा था, नॉलेज नेबर की है पर देगा पूरे नेटवर्क को. तीसरा डिफरेंस सेज ये भी पूरा रिवर्स है. राउटिंग इंफॉर्मेशन अपडेटेड एट रेगुलर इंटरवल, चाहे कोई कंप्यूटर ऐड हो या ना हो, चाहे रिमूव हो या ना हो,
एक फिक्स टाइम के बाद वो रूटिंग इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेगा ही करेगा। बस लिंक स्टेट में वो रूटिंग इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेगा, तभी एक फिक्स टाइम के बाद नहीं करेगा, तभी करेगा जब चेंज होगा। चेंज का मतलब है when you add some computer or you remove some computer, you add some router or you remove some router. Now see the diagram distance vector का। हमारे पास 5 A B C D, these are the computers we have। और रूटिंग डिस्टेंस वेक्टर में हमने क्या पढ़ा था? इट हैज नॉलेज अबाउट द होल नेटवर्क, बट देगा सिर्फ अपने नेबर्स को। चेक करिए, ए के नेबर्स है बी और ई, तो ए कह रहा है आई पीरियोडिकली सेंड माय नॉलेज अबाउट द होल नेटवर्क टू बी एफ एंड ई ओनली बिकॉज ए इज कनेक्टेड टू बी एफ एंड ई। ए के नेबर्स बी एफ और ई है, और हमने यही पढ़ा था। तो ए को नॉलेज पूरे नेटवर्क की है और देगा सिर्फ अपने नेबर्स को। तो अब इस डायग्राम को देखिए, और पीरियोडिकली सेंड, क्योंकि हमने पढ़ा था एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो रेगुलरली it will update the routing information. So check A, B, F and E. So A will share the knowledge of the whole network to its neighbors only, B, F and E. Similarly, if you see B, so B's neighbors are A and C. So A will share the whole network knowledge with A and C only. Similarly, if you check C, C's neighbors are B and D. So C will share the network about knowledge about the whole network with B and D. So this is distance vector routing. So similarly, D's neighbors are E and C. F's neighbors are only A. So A will share the whole network knowledge with A only. Now we have a table for it. इसमें रूटिंग इंफॉर्मेशन की डिटेल रहती है, कौन सा नेटवर्क है, कॉस्ट यानी उसमें पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और नेक्स्ट हॉप, हॉप का मतलब है कंप्यूटर, नेक्स्ट डिस्टेंस, नेक्स्ट कंप्यूटर कौन सा है, उसका नेबर कंप्यूटर कौन सा है। This is the table we have. Then we have the link state routing. I have told you the property is just the reverse of distance vector. ये उसका डायग्राम है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नॉलेज नेबर्स की होती है बट डेटा सारे नेटवर्क को है। इफ यू सी distance vector, net knowledge about the whole network but will share with the neighbors only. But in link state, it has a knowledge of neighbors only but share with the whole network. To check link state, I send the information about the neighbor to all. उसको इंफॉर्मेशन अपने नेबर्स की है बट दे पूरे नेटवर्क को रहा है, पूरे नेटवर्क को बता रहा है कि मेरे ये नेबर्स हैं। और ये लिंक सेट का डायग्राम है। एडवर्टाइजर है जो बताता है कि कौन से नेबर्स हैं, कौन सा नेटवर्क है, पहुंचने में कॉस्ट कितनी लगेगी, और मेरे नेबर्स कौन से हैं। ये लिंक सेट का डायग्राम है। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ द टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। Okay, so this was your routing algorithm. Let us see what all we saw in this PPT. If we see from the start, we did what? We did networking devices and internet devices. Tamanna, you have any doubts? No, sir. Okay, fine. So we have networking devices, internet networking devices. I told you networking devices are जब एक ही नेटवर्क में डिवाइस को कनेक्ट करना है, इंटरनेट नेटवर्किंग से एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करना है। तो वी सॉ these diagram. Networking devices are repeaters and bridges. Repeater works on physical layer, bridge works on data link layer. Internet networking devices, routers and gateways. I repeat again, networking devices when you are connecting devices within the same network. Internet networking devices when you are connecting one network to the other network. So we have these layers. I told you, repeater works on physical layer, bridge works on data link layer, router works on network layer, gateway works on application layer. And I told you, if I say router works on network layer, that means it works on first all 3 layers. If I say gateway works on application layer, that means it works on all 7 layers. Please wait. Okay, let us see now. Then we saw the various devices. A repeater, I told you repeater का काम होता है attenuation को, effect को कम करना, because attenuation we know is a loss of energy. तो signal को regenerate करना is a task of repeater. It works on physical layer and it regenerates the data. Because I told you we cannot call repeater an amplifier because amplifier also amplifies the noise. But here we have to amplify only the
strength of the data. We have to increase the strength of the signal or data. So because our data travels in the form of signal, so we will say the repeater amplifies my signal only. So we have a bridge. It works on data link layer. Data link layer means it works on the first two layers. Then I told you it is used to connect different subnetworks. So if I want to connect one subnet, second subnetwork, third subnetwork, so I can use a bridge. I told you there may be two cases. A is sending data to D. Though both computers are within the same network, it does not need to cross the bridge. But second scenario, A is communicating to G. So A is on one subnetwork, G is in other subnetwork. So bridge will help that data to travel from A to G. क्योंकि bridge के through वो data जाने वाला है. And I told you we have a multi-port bridge also, where we can connect. This is a simple bridge, only connecting two subnetworks. When you want to connect more than two subnetworks, we call it multi-port bridge. Then we have the router. I told you router is used to connect one network to the other network. It works on network layer. That means it works on first all three layers, and it is used to connect similar technologies. And I told you gateway works on application layer. That means it works on all 7 layers, and it is used to connect different heterogeneous technologies. And it is also called as protocol converter, because it will take data from SNA and convert it to network understandable form and deliver it to network understandable form. And it will take data from the network and convert it to SNA's understandable form. So it is also called as protocol converter. So we have a router also, which is acting like a bridge also, and router also. And there we saw the routing algorithm. A routing algorithm basically makes a decision how the data will travel. So we have adaptive routing, we have non-adaptive routing, we have distance vector routing, we have link state routing, we have shortest path routing. Okay. Now, so if we go next, there are 5 properties of the routing algorithm. Correct data means be able to correct destination. It should be simple, faster. It should be robust. Means if it should be able to handle some failure or fault. If some fault is there, the routing algorithm should be able to take some alternate decision. Stability should be then routing algorithm should be stable, should be able to deliver data in a good way. Fairness and optimal, that it should satisfy the all conditions of the networks, and optimal transmission should be there. There should be no malfunction. And we have adaptive algorithm, non-adaptive algorithm. Adaptive algorithm, I told you, which can adapt and like some decisions are there. Suppose a traffic जो data जिस route से आप data भेज रहे थे उस पे data बहुत ज़्यादा है, तो it can take some alternate route. और if there is a change in the topology, अगर topology हम change करते हैं तो उसको भी adapt कर सकेगा, फिर भी data switching कर पाएगा. And non-adaptive में just the reverse of it. Then we saw distance vector routing. It has network knowledge about the whole network, but information will be shared with neighbors only. The link state is just the reverse. Has information about the neighbor, but will share with the whole network. Third difference was the routing information updated at a regular interval of time. So after every regular interval of time, the routing information will be updated. कोई router add तो नहीं हुआ, कोई delete तो नहीं हुआ. Okay. But in this case, routing information will be updated when there is a change. It will not be done after a fixed time, because it will be only done when there is a change. Change means some router is added or some router is deleted. So these are the two diagrams we saw. Distance vector, वो नेटवर्क पूरे नॉलेज की होती है, बट शेयर सिर्फ अपने नेबर्स के साथ करता है. द रिवर्स, ओके, नॉलेज सिर्फ नेबर्स की होता है, बताता है पूरे नेटवर्क को. दिस इज द रूटिंग एल्गोरिथम्स एंड कंजेशन कंट्रोल. तो ये सारे हमारे टॉपिक था हमारा, दैट इज रूटिंग एल्गोरिथम्स. प्लीज तमन्ना इज देयर. तमन्ना, यू हैव एनी डाउट्स? Yes, sir. Yes, Sir, say. shortest path method we haven't did. Oh, shortest path is just finding the shortest path. It is controlled by OSPF. It has not got any diagram for it. Or you can in last data structures you did an algorithm called Yes, sir, shortest path. Warshall algorithm. Yes, sir. So that is the perfect example for it. Okay. Yes, sir. Thank you. Any other doubts? Please raise your hand if you are having any doubts.
Please raise your hands if you are having any doubts. चलिए, third topic we are going to see today is network security. Now, network security is what? Are you able to see the screen? Please raise your hand if you are able to see the screen. Okay, fine, fine, fine. तो नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब है नेटवर्क को बचाना है, प्रोटेक्शन करनी है नेटवर्क की. You see on the screen? तो I have to protect my networks and its services. नेटवर्क को उसकी सर्विसेज को बचाना है. किससे बचाना है? Some on unauthorized access से. कोई unauthorized access तो नहीं हो रही है, कोई डिस्ट्रक्शन तो नहीं हो रही है, कोई डाटा को चोरी करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कोई नेटवर्क पे किसी रिसोर्स को मिसयूज करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है. तो इस सब से बचाने के लिए we call network security, because network security is basically protection of network. नेटवर्क को बचाना है और उसकी सर्विसेज को बचाना है ताकि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, कोई डिस्क्लोजर ना हो. डिस्क्लोजर का मतलब है कि कुछ नेटवर्क क्लोजर ना हो उस केस में. तो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए बेसिकली हम क्यों करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी? क्योंकि हमें कंप्यूटर्स को बचाना है, हमें डेटा को बचाना है, हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बचाना है. Because there are two type of information. One is called sensitive information, one is called insensitive information. Like the data we share, our name, our phone number, this is insensitive information. क्योंकि हमारा अगर डेटा किसी को पता चल भी जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा. But sensitive information ऐसी होती है, अगर किसी को पता चल जाए तो it can be a loss. Like your email's password, your Facebook's password. Okay, so that is sensitive information. If stolen, can have your monetary loss also. Because organization एक दूसरे का डेटा चुराती है ताकि एक दूसरे से compete कर सकें. और अगर एक नेटवर्क को डैमेज होता है, उसकी इंफॉर्मेशन चोरी होती है, जैसे लास्ट में फ्यू इयर्स बैक यू मस्ट हैव हर्ड कि फेसबुक ने डेटा, फेसबुक का डेटा बहुत सारा या आधार का डेटा बहुत सारा चोरी हुआ. तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को भी फर्क पड़ता है. नंबर ऑफ यूजर कम होते हैं. अब देखिए मोस्टली यूजर जो हैं फेसबुक से इंस्टाग्राम पे शिफ्ट कर गए, तो इससे रेपुटेशन को भी फर्क पड़ता है. अब हम लाइक व्हाट वी डू फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी. फर्स्ट फीचर इज कॉन्फिडेंशियलिटी. तो हम इंफॉर्मेशन सिर्फ उनको देंगे जिनके पास राइट है, जिनके पास राइट है कि इनको इंफॉर्मेशन देनी है. सब लोगों को इंफॉर्मेशन देंगे ही नहीं. तो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, यानी देंगे ही उनको हु हैज राइट फॉर इट. सेकंड थिंग इज इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी इज बेसिकली सेज कि डेटा को हमेशा कौन चेंज कर पाएगा? सिर्फ एक ऑथराइज्ड बंदा जिसको परमिशन है कि डेटा वो चेंज कर पाए. अदरवाइज कोई भी बंदा डेटा को चेंज नहीं कर पाएगा. इंफॉर्मेशन को सिर्फ वही बंदा चेंज कर पाएगा जिसके पास उसकी परमिशन. तीसरा अवेलेबिलिटी. कहते हैं डेटा अवेलेबल ही उसको कराओ जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत नहीं है उसको अवेलेबल मत कराओ. ओके. एंड फोर्थ इज वेरिफिकेशन. नाउ वेरिफिकेशन सेज व्हाट? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक सपोज आई से there is a user who sends an email to B user. ओके, ए ने बी को एक ईमेल भेजा, बट बी को ये कैसे पता चलेगा कि ए ने भेजा है? आप बोलोगे ये बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है, ए के ईमेल आईडी से आया तो ए ने भेजा होगा. मैं एग्जांपल लेता हूं. अजय को विजय ने मेल भेजा. अब अजय को मेल आया है और विजय ने भेजा है, बट हाउ यू आर श्योर कि विजय ने भेजा है? हो सकता है विजय का मेल आईडी किसी ने मिसयूज किया हो उसको डेटा को भेजने के लिए. तो इस चीज के लिए हम यूज करते हैं वेरिफिकेशन. हम इसमें ये वेरीफाई करते हैं कि सेंडर ने ही डाटा भेजा है. ऐसा हो सकता है ना सेंडर का मेल आईडी कोई मिसयूज करके डाटा भेजे. तो इस इशू को हम कहते हैं नॉन रेपुडिएशन. कि इसको वेरीफाई कैसे करें कि आया तो ए के मेल आईडी से ही है बट क्या ए नहीं भेजा है. इसके लिए हम यूज करते हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, डिजिटल सिग्नेचर्स. तो डिजिटल सिग्नेचर ये बताता है कि ईमेल आईडी तो ए से ही आया है बट ए ने ही भेजा है. तो डिजिटल सिग्नेचर, हम ए अपनी मेल में डिजिटल सिग्नेचर लगाए, अपना डिजिटल सिग्नेचर लगाएगा तभी बी को ट्रस्ट होगा कि ए से मेल से आया. इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं. लाइक सपोज दो लोग हैं जो गोल्ड का बिजनेस करते हैं एंड ए ने बी को ऑर्डर प्लेस किया और आज
प्रोडक्ट जो प्राइस था गोल्ड का वो बहुत हाई था, तो ए ने बी को ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट डे गोल्ड का प्राइस कम हो गया, तो ए ने विड्रॉ कर दिया कि मैंने तो ऑर्डर नहीं प्लेस किया, बिकॉज अब उसको चीप प्राइस में मिल रहा है। तो बी बताएगा कि आपकी ईमेल में आपका डिजिटल सिग्नेचर लगा था, इसका मतलब है मेल आपने ही भेजा है। तो दिस इज फॉर वेरीफाइंग द सेंडर कि सेंड आया तो ए के मेल आईडी से है, बट क्या ए नहीं भेजा है। अब थ्रेट दो तरह के होते हैं, एक नेटवर्क सिक्योरिटी में थ्रेट दो तरह के होते हैं। ये 4 पैरामीटर क्लियर है आप लोगों को? प्लीज रेज योर हैंड। कॉन्फिडेंशियलिटी सेज, कॉन्फिडेंशियलिटी सेज कि इंफॉर्मेशन दो ही उनको जिनके पास राइट है, जिनको देना है, सबको मत दो। इंटीग्रिटी कहता है कि इंफॉर्मेशन को सिर्फ ऑथराइज बंदा ही चेंज कर पाएगा, हर बंदा नहीं, ऐसे कोई भी चेंज कर दे। अवेलेबिलिटी का मतलब है इंफॉर्मेशन दो ही उसको जिसको चाहिए, जिसको चाहिए नहीं अगर आप उसको भी दोगे तो वो उसको मिसयूज कर सकता है। और वेरिफिकेशन का मतलब है आप ये कैसे वेरीफाई करोगे कि सेंडर सही है, आया तो ए के मेल आईडी से ही है, बट क्या ए नहीं भेजा है। फॉर दिस वी यूज अ टर्म कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर। अगर ए की मेल में डिजिटल सिग्नेचर लगा हुआ है तो इसका मतलब ए नहीं भेजा है। अब थ्रेट दो तरह के हो सकते हैं। थ्रेट इज बेसिकली द रिस्क, द डेंजर्स, दो तरह के हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल थ्रेट वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही आते हैं, कंपनी के अंदर से ही आते हैं, और एक्सटर्नल वो हैं जो बाहर से आते हैं। इंटरनल लाइक का एक इंटरनल थ्रेट सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है उसका एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय कहीं भी जा सकता है। एम्प्लॉय एक हम जनरली सोचते हैं शायद एक थ्रेट जो है एक्सटर्नल थ्रेट मोस्टली हो सकता है, बट रिसर्च कहती है कि 60% ऑफ द थ्रेट्स आर इंटरनल। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ा खतरा उसका एम्प्लॉय ही है, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से उसके डेटा को यूज करता है। एक अंदर वाला जो इंटरनल बंदा है वो नेटवर्क की वीकनेसेस को जानता है, उसके लूप होल्स को जानता है, वो आसानी से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में मूव कर सकता है, वो अपना ऑर्गेनाइजेशन का लैपटॉप भी घर लेके जाता है, तो आपका डेटा बाहर जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन से। तो एम्प्लॉय ही जो है वो हमारा इंटरनल थ्रेट है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें काम करता है, बिकॉज वो उसके लूप होल्स जानता है, वो जानता है कि उसकी वीकनेसेस क्या है नेटवर्क की, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भी जा सकता है, सर्वर लोकेशन पे भी मूव कर सकता है। ओके, उसके पास पासवर्ड्स हैं नेटवर्क के, या वो ऑर्गेनाइजेशन का लैपटॉप या पेन ड्राइव में डाटा डाके घर लेके जाता है, तो अगेन इट इज रिस्की। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम सिक्योरिटी ऑडिट करेंगे, एक प्रोसेस चलाएंगे जिसमें ये करेंगे कौन सा यूजर क्या कर रहा है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय के ऊपर चेक रखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, एक सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएंगे। ओके, कि कौन सा स्वाइप कार्ड, कौन सा बंदा कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, कौन कौन से रिस्ट्रिक्टेड एरियाज को विजिट कर रहा है, ताकि पता चले कि एक्चुअली कौन कर रहा है ये चीज। फायरवॉल को यूज करेंगे, वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। इसीलिए आप देखिए कभी ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कभी हमारी तरह जीमेल या याहू या ऐसे मेल्स यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनमें अटैच करके ऑर्गेनाइजेशन का डाटा लीक कर सकते हैं। तो उनको अपना इंट्रानेट मिला होता है जिसमें उनका अपना ईमेल आईडी, एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग से ईमेल सिस्टम उनको आर्किटेक्चर मिला होता है, जिसमें वो ईमेल यूज कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का डाटा ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं जाएगा उस केस में। ओके, एक्सटर्नल थ्रेट वो थ्रेट्स हैं जो बाहर से आते हैं, जैसे हैकर्स बेसिकली, ये बहुत सारे, ये सारे हमारे एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, वन बाय वन हम सारे देखने वाले हैं। एक्सटर्नल थ्रेट में जो ऑर्गेनाइजेशन बाहर से आता है, ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग का मतलब होता है, जैसे सपोज आप डेटा कुछ भेज रहे हैं और डेटा वायर के थ्रू ट्रेवल कर रहा है या वायरलेसली हवा में ट्रेवल कर रहा है, तो जब डेटा हवा में ट्रेवल कर रहा है और आप इसको चोरी कर लो, तो इसको हम कहते हैं ईव्सड्रॉपिंग। व्हेन डेटा इज इन मोशन एंड यू स्टील इट, इसको हम कहते हैं ईव्सड्रॉपिंग। देन इज कम्युनिकेशन जैमिंग। कम्युनिकेशन जैमिंग का मतलब आप इंटेंशनली आप नेटवर्क को जैम कर रहे हो ताकि नेटवर्क के ऊपर हम डेटा सेंड ना कर सकें। ओके, कम्युनिकेशन को जैम किया जा सकता है। अगर मैं नेटवर्क के ऊपर बहुत ज्यादा पैकेट थ्रो करूं, नेटवर्क का ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, तो कम्युनिकेशन जैम हो जाएगा, एक्चुअली यूजर्स का डेटा सेंड कर ही नहीं पाएंगे लोग। तो ये भी एक्सटर्नल थ्रेट है। देन डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ये मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो। पिंग ऑफ डेथ, पिंग ऑफ डेथ, लेट मी शो यू वंस अगेन। CMD, command prompt. I told you when I pinged google.com, तो Google will reply me, बिकॉज ये 32 बाइट का पैकेट मैंने गूगल को भेजा। बट अगर मैं गूगल को बड़े पैकेट भेजूं,
जैसे हमने लास्ट टाइम ये भेजा था, अगर आपको याद हो, इसको पिंग ऑफ डेथ भी कहते हैं और डीओएस भी कहते हैं। तो गूगल मुझे कभी रिप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज मैंने इतना बड़ा पैकेट गूगल को भेजा है, 65,000 बाइट्स, 65,000 बाइट्स ऑफ पैकेट डेटा। ये इतना बड़ा डेटा है कि जिसके लिए गूगल मुझे रिप्लाई देगा ही नहीं, क्योंकि अगर गूगल मुझे इसका रिप्लाई देना शुरू कर देगा तो गूगल बिजी होना शुरू हो जाएगा, नेटवर्क की यूजर्स को उसकी सर्विसेज नहीं दे पाएगा। तो गूगल ने इस पैकेट को क्रश कर दिया, इसका रिप्लाई नहीं दिया मुझे। इस चीज को हम कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस, सर्विस को डिनाई कर देना। देन डेटा मॉडिफिकेशन एंड इंजेक्शन, अगर हैकर मेरे डाटा को मॉडिफाई कर देता है या कुछ नया डाटा उसमें इंजेक्ट कर देता है, इसके लिए हम यूज करते हैं हमारा, if you remember, we had done that method called checksum method, right? checksum method. तो checksum method से हमें पता चल जाता है कि डाटा मॉडिफाई तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर डाटा मॉडिफाई होगा तो वो उसका checksum भी चेंज होगा। Then we have another attack called man in the middle attack. Suppose एक होम यूजर जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, डेटा ट्रेवल कर रहा है, बट इंटरनेट से होम यूजर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बीच में एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो होम यूजर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। तो आईएसपी एक मैन इन द मिडल है, होम यूजर जो भी डाटा इंटरनेट पे भेज रहा है वो आईएसपी के थ्रू जा रहा है। तो अगर आईएसपी पे मैं बैठा हुआ हूं तो मैं मैन इन द मिडल हूं, दोनों के बीच में मैन इन द मिडल। तो आई कैन स्टील एनी डेटा ऑफ यू, आई कैन सी व्हाट यू आर सेंडिंग, तो दिस इज कॉल्ड मैन इन द मिडल। रॉ क्लाइंट्स, फेक क्लाइंट्स, अगर मैं अपनी आइडेंटिटी को फेक करूं, नेटवर्क के अंदर यूज करके उसकी रिसोर्सेज को यूज कर सकता हूं। तो इसके लिए हमने पढ़ा था सबनेट मास्क, अगर आपको याद हो, आईपी एड्रेस को ब्लॉक करेंगे ताकि यूजर जो है नेटवर्क को मेरे एक्स्ट्रा आईपी एड्रेस को यूज ना कर सके। वी हैव अनदर अटैक, क्लाइंट टू क्लाइंट अटैक। आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा, बहुत कॉमनली हमने सुना, ये बात करी है इसके ऊपर, वायरस के ऊपर, और देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड वॉर्म। वायरस और वॉर्म में फर्क होता है। वायरस अटैक्स ऑन अ कंप्यूटर, बट वॉर्म डज व्हाट? वॉर्म में सपोज A is connected to B and B is connected to C, तो वॉर्म अगर एक कंप्यूटर पे अटैक करता है, बिकॉज दीज कंप्यूटर आर कनेक्टेड ABC, तो इट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर टू डैमेज इट, इट कैन ट्रेवल फ्रॉम B to C। तो ये डिफरेंस होता है वायरस और वॉर्म में, वॉर्म्स कैन ट्रेवल। तो दिस इज कॉल्ड क्लाइंट टू क्लाइंट अटैक। क्लाइंट टू क्लाइंट अटैक का मतलब अगर एक क्लाइंट पे अटैक होता है तो ऑल क्लाइंट्स आर कनेक्टेड, आई कैन मूव, आई कैन अटैक अनदर क्लाइंट, जिसका क्लाइंट टू क्लाइंट अटैक। इफ आई एम एबल टू अटैक A, I will be able to attack B through the worm, because worms can travel from one computer to the other computer for damaging. Then data theft, data को चोरी कर लेना, backdoor entry. I told you, if you see, if we try to see some practical, let us see one thing. Okay. Backdoor entry. I'm trying to tell you backdoor entry. What is that? If you do here and you write in Google port scanning, so there will be some websites open port scanning के लिए, and port scanning के लिए हमारे पास एक tool है MX Toolbox port scan। तो मैं इसको खोल रहा हूँ MX Toolbox। तो आपको बताया था मैंने, कंप्यूटर है 65535 पोर्ट्स, तो उस पोर्ट को हम स्कैन कर सकते हैं। तो MX lookup, and there is a wait, all tools. There are many tools. There is a port scanning tool also. Let us find it. Okay. Port scanning option यहाँ पे नहीं है। Let us find some site. मुझे option दे, क्योंकि यहाँ पे option होता था पहले। Let us see domain name. Let us see first. MX lookup. I fill the name of our college website. ACET Amritsar.in. So let us do its MX lookup, and here will be the option for port scanning.
Okay. Okay, it's not available here. Let us see some other site. Port scanning. So port scanning, there are n number of websites with the help of which we can scan website port, and we can check how safe that website is. ये मेरे पास एक टूल है pentesttools.com, and let us see scan port scanning. तो www.acetamritsar.in, and let us check. Let us scan our college website and check. Okay, it is scanning our website, and you can check. This is a report, download report. Let us see the scan report for ACTamritsar.in. ओके, तो एक्चुअली ये पेड टूल है, तो हमने इसको स्कैन किया है. अगर आप देखिए तो उसने सारी पोर्ट स्कैन नहीं करी है, एंड टॉप 100 पोर्ट्स में सिर्फ स्कैन करी है. फुल स्कैन की फैसिलिटी के लिए मुझे पे करना पड़ेगा. तो अगर मैं इसको स्कैन करता हूँ रिपोर्ट में फुल स्कैन में, तो ये मुझे बताएगा कि कौन कौन सी पोर्ट जो है वो ओपन है और कौन कौन सी पोर्ट जो है वो क्लोज है. और हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, बैकडोर एंट्री, क्योंकि हैकिंग के अंदर हम जब एक कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, किसी भी तरीके से, हमारे पास टूल्स हैं कुछ इसके लिए. जिन्होंने हैकिंग के वर्कशॉप लगाया था उन्होंने देखा था, नेटवर्क हमने यूज किया था, देन हमने प्रोरैट यूज किया था. तो हम क्या करते हैं, इन नेटवर्क के अंदर जब एंटर कर जाते हैं तो उसके अंदर एक ऐसी एंट्री डोर बना जाएंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं नेटवर्क के अंदर एंटर करूंगा मेरा रास्ता आसान हो. इस टाइम तो मैंने बड़ी मुश्किल से एंटर किया, बट एक बार जब हम कंप्यूटर के अंदर एंटर कर जाते हैं नेटवर्क के अंदर, तो वी क्रिएट अ पाथवे so that we can enter next time also. तो इसके लिए बैकडोर एंट्री हम यूज करते हैं. वायरस, हम ईमेल वॉर वायरसेस ये भी एक एक्सटर्नल अटैक है. ईमेल में वायरसेस अटैच करके भेजना. देन पैकेट स्निफिंग. पैकेट स्निफिंग का मतलब आपके पैकेट ट्रेवल कर रहे हैं, तो स्निफिंग करके पता लगाना कि कौन से पैकेट जा रहे हैं, उनमें क्या डाटा जा रहा है. Then Trojan horse programs. Trojan horse is a type of virus again. It is a most complex type of virus. It is again an external attack. अब देखिए आपके एंटीवायरस जो हैं मोस्टली ट्रोजन हॉर्स को they detect and they remove, because these are the Trojan horse are basically developed. These are the virus programs. These are again coded. These are programmed to steal data. और Trojan horse को अगर हम कोड करें तो हम किसी भी नेटवर्क के अंदर एंटर करके उसके रिसोर्सेज को मिसयूज कर सकते हैं. It is a type of virus again. IP spoofing. तो IP spoofing is basically IP चोरी कर लेना किसी का, किसी नेटवर्क का, और उस नेटवर्क के अंदर एंटर करके उसका डेटा मिसयूज कर सके. IP spoofing is again, एक देखो इसमें लिखा हुआ है, एक होस्ट क्लेम कर रहा है कि मेरे पास एक ट्रस्टेड आईपी है, तो नेटवर्क के अंदर एंटर कर सकते हैं. उसके अब एक्सटर्नल अटैक से बचना कैसे है, आप इसके लिए सिस्टम सपोर्ट पर्सनल यूज कर सकते हैं, एंटीवायरस यूज कर सकते हैं, फायरवॉल यूज कर सकते हैं. कभी भी अननोन अटैचमेंट मत खोलिए, अननोन प्रोग्राम मत चलाइए, अननोन हिडन फाइल एक्सटेंशन मत चलाइए. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा पैच करके रखिए. ओके, जब नेटवर्क पे जरूरत नहीं है तो डिस्कनेक्ट करिए. जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस को मत चलाइए, इसको डिसेबल करके रखिए अपने ब्राउजर में. और ईमेल में स्क्रिप्टिंग को भी डिसेबल करिए, बिकॉज वायरस प्रोग्राम स्क्रिप्टेड के थ्रू ही आते हैं. अपने डाटा की बैकअप जरूर लेके रखिए, और एक बूट डिस्क बना के जरूर रखिए, ताकि अगर आपका कंप्यूटर डैमेज हो तो आप उसको रिकवर कर पाए. ये एक्सटर्नल स्टैक से बचने का है तरीका. और ये है मेरी फायरवॉल. अब फायरवॉल का बेसिक काम होता है, ये देखिए आप रेड पैकेट जा रहे हैं इंटरनेट से, ग्रीन पैकेट जा रहे हैं और रेड पैकेट आ रहे हैं, पर नेटवर्क के ऊपर सिर्फ ग्रीन पैकेट्स ही अलाउ होंगे, बिकॉज ये ग्रीन पैकेट जो है एक ट्रस्टेड आईपी एड्रेस से आ रहे हैं, और फायरवॉल पे हमने कुछ आईपी ब्लॉक कर रखे हैं, और जो आईपी हमने ब्लॉक कर रखे हैं वो रेड ट्रैफिक आ रही है.
So these are the invalid. The green is a valid packet and this red one is your invalid packets. तो ये नेटवर्क के ऊपर एंटर नहीं कर पाएंगे बिकॉज फायरवॉल इनको ब्लॉक। तो आज ये हमने एक अलग से टॉपिक पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, उसके लिए हम क्या करते हैं, व्हाट टू डू। देन दो तरह के हमारे पास अटैक होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल एज एम्प्लॉइज, उससे कैसे बचना है। एक्सटर्नल अटैक में ये सारे पढ़े, ईवसड्रॉपिंग, डिनायल ऑफ सर्विस, ओके। देन ये सारे एक्सटर्नल अटैक्स हैं हमारे। ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में भी एक सिक्योरिटी वाला पार्ट है, चैप्टर है। तो प्लीज मेक श्योर सिक्योरिटी आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि आप अगर नेटवर्क सिक्योरिटी नेटवर्क सब्जेक्ट में ये सिक्योरिटी वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ओएस में सिक्योरिटी अपने आप ही कवर हो जाएगा। तो ये आपका डुअल टॉपिक है, ओएस में भी है और सीएन में भी है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखे कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम, राउटिंग एल्गोरिथम्स एंड फाइनली वी सॉ द नेटवर्क सिक्योरिटी पार्ट। Please, Radhika is there. Radhika, you have some question? Good morning, sir. Good morning. No, sir. Okay. So if you are having any doubts, you can raise your hand. Okay, Prateek, you're right. Yes, Prateek. सर जैसे आपने कहा कि हैकर एक पाथ क्रिएट कर लेता है, फिर उससे नेक्स्ट टाइम फिर से अटैक करना Exactly. तो सर फिर यूजर को कैसे पता चलेगा कि मतलब पाथ ऐसे आप- क्रिएट करके कोई आ रहा है? आपको देखिए, आप अपने सिस्टम पे कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी अगर आप किसी भी अटैक से बचना चाहते हैं। ऐसे अटैक्स के बचने के लिए आपको मैंने बताया अननोन ईमेल अटैचमेंट आप नहीं खोलेंगे। क्योंकि मैं क्या करूंगा, आपकी फाइल, आपकी इमेज में मैंने जिन्होंने हैकर लगाया था मैंने बताया था, इमेज में हम ट्रोजन अटैच करके आपको भेज सकते हैं। अगर आप इमेज को एक बार ओपन करोगे, ट्रोजन आपके कंप्यूटर में रन हो जाएगा। वो एक आपके कंप्यूटर के अंदर जो पोर्ट्स हैं उसको ओपन कर देगा, मेरे को बता देगा ये वाली पोर्ट ओपन करी है, और उस पोर्ट से मैं नेटवर्क के अंदर एंटर कर सकता हूँ। इसके लिए हम ट्रोजन यूज करते हैं या रिमोट एक्सेस टूल यूज करते हैं। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे रिमोट एक्सेस टूल्स हैं। डोंट वरी, आई विल, हमारा जैसे ही सिलेबस खत्म होगा मैं आपको ये चीजें प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। जिन लोगों ने हैकिंग का वर्कशॉप नहीं भी लगाया था उनको भी हेल्प हो जाएगा उसमें। Is it clear, Pradeep? Yes, sir. Okay. Any other doubts, please? Any other questions?